پھر 1500 کا بل آ گیا نسرین۔ نہ کولر ہے نہ اے سی، صرف ایک پرانا پنکھا، وہ بھی دن میں آدھا وقت بند رکھتے ہیں۔ تو اور کیا کریں سلیم؟ بجلی کا بل نہ آئے اس کے لیے پنکھا بھی پین آف پر رکھ دیا، مگر لگتا ہے ہوا کھینچنے کا بھی بل لگ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے بجلی نہیں خرید رہے، آگ خرید رہے ہیں۔ ہر مہینے یہ کاغذ مجھے چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہم نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے سلیم، تم تو ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ اب بھی ہارا نہیں ہوں، بس تھک گیا ہوں۔ زینب کے جوتے تک ٹوٹ گئے ہیں، نیا لے کر دینے کی ہمت نہیں۔ میں نے زینب کو کہا امید دعا کریں گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا دی، مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ پنکھا بھی جیسے زبردستی چل رہا ہے، کبھی سوچتا ہوں بیچ دوں۔ پھر زینب کو گرمی میں کیسے سلاؤ گے؟ ہم تو سہ لیتے ہیں، بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ تمہیں پتہ ہے نسرین، مرد کا تھکنا نظر نہیں آتا، پر دل چیخ رہا ہوتا ہے۔ اور عورت کا برداشت کرنا بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ میں جانتی ہوں تم ہر دن ہار کے رات جیتنے کی دعا کرتے ہو۔ کبھی کبھی خواب بھی بوجھ لگتے ہیں۔ یہ بل ہر مہینے عزت اتار دیتا ہے۔ یہ پنکھا تمہاری محنت جیسا ہے، سست پر مسلسل۔ یہ پنکھا اب ہماری دعاؤں سے ہی چل رہا ہے شاید۔ وہ دن بھی آئے گا سلیم، ہم صرف بل کے نہیں امید کے بھی محتاج ہیں۔ کاش کوئی ایسا دن آئے جب بل نہ ہو، صرف ٹھنڈی ہوا ہو جو دل کو سکون دے۔ چچا صابر سے امید رکھنے سے بہتر ہے اللہ سے رکھو، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ چچا صابر سے ادھار مانگا تو انہوں نے بھی ہاتھ جھاڑ دیا۔ سلیم ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں مگر اپنا رشتہ نہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تمہاری باتوں میں سکون ہے نسرین، یہی سکون ڈھونڈنے سڑکوں پہ نکلتا ہوں۔ اور تم کر بھی لوگے، بس خود کو نہ ہار دینا۔ میں چاہتا ہوں زینب کے لیے کچھ بہتر کر سکوں۔ جیسے جیسے بادل گہرے ہوتے ہیں ویسے ویسے بارش قریب آتی ہے، بس وقت کا امتحان ہے۔ کل سوئی گیس والے بھی آ کر چلے گئے، آخری وارننگ دے گئے ہیں۔ اور پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کیونکہ ہم خالی ہاتھ ہیں، خالی دل نہیں۔ یہ دنیا کچھ اور دوڑ رہی ہے، ہم صرف بجلی سے بچ رہے ہیں۔ اور پنکھے کی رفتار تمہاری ہمت پر، بچے کی ہنسی بھی اب پنکھے کی رفتار پہ چلتی ہے۔ اور دعاؤں کی بجلی کبھی کٹتی نہیں سلیم۔ چلو پنکھا تو چل رہا ہے، امید کی ہوا ابھی بند نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں تم ہر دن ہار کے رات جیتنے کی دعا کرتے ہو۔ امی اب تھک نہیں جاتی، اتنی گرمی میں مجھے پنکھا جھلتے جھلتے۔ جب بیٹیاں تھک جاتی ہیں تو مائیں طاقت بن جاتی ہیں زینب۔ اور امی اگر ہمارے گھر میں ایسی ہوتا تو آپ کو یہ سب نہ کرنا پڑتا نا۔ ہوتا تو اچھا تھا بیٹا، مگر اے سی سے پہلے بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جیسے کیا؟ جیسے حالات، جیون میں سکون، دل کا صبر، اور سب سے بڑھ کر قسمت کا ساتھ۔ میری سہیلی نازیہ کہتی ہے تمہارا گھر تو جیسے تنور ہے۔ تو کہنا اس تنور میں ایک ماں کے خواب پکتے ہیں جو ایک دن تمہیں ٹھنڈا گھر دیں گے۔ پر امی میرے کپڑے ہر وقت بھیگے رہتے ہیں، اسکول میں سب چڑھاتے ہیں۔ یہ پسینہ ہے، شرمندگی نہیں، یہ محنت کی نشانی ہے۔ پر میں تو ابھی بچی ہوں، میری محنت کہاں؟ تمہاری محنت ہے اسکول جانا، سچ بولنا، خواب دیکھنا، یہی بڑی محنت ہوتی ہے۔ کیا خواب بھی کبھی سچ ہوتے ہیں؟ وہی خواب سچ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ امی کیا ہم کبھی امیر ہو سکیں گے؟ ہم دل سے امیر ہیں زینب، بس دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں۔ میرے بالوں میں خوشبو نہیں آتی، میرے پاس خوبصورت پرفیوم نہیں ہے۔ بیٹا تیری معصومیت ہی خوشبو ہے، سستی خوشبوئیں جلدی الفار جاتی ہیں۔ کل نازیہ کہہ رہی تھی وہ تو اے سی کے نیچے روز آئس کریم کھاتی ہے، اور تم میری گود میں سوتی ہو، یہ آئس کریم سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ زینب امی آپ کو لگتا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ بالکل، ہر رات جب تم سوتی ہو اور میں دعا کرتی ہوں وہ سنتا ہے۔ پر کب دے گا امی؟ میں تھک گئی ہوں گرمی سے، مچھروں سے، اندھیرے سے۔ جب انسان تھک جائے تب اللہ قریب ہو جاتا ہے، بس صبر کا ایک قدم اور۔ اب کیا اے سی اللہ کے قریب آنے سے ملے گا؟ نسرین نہیں بیٹا، اے سی نہیں، سکون ملے گا، اور کبھی کبھی سکون ہی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔
पर मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास वो सब हो जो बाकियों के पास है। नसरीन, तुम्हारे पास वो माँ है जो रातों को जाग कर तुम्हारे लिए ख्वाब बुनती है। ये सबसे बड़ी दौलत है। पर उम्मी, कभी कभी मैं जलती हूँ दूसरों से। जलना नहीं चाहिए बेटा, रोशनी बनना चाहिए ताकि औरों को भी रास्ता दिखा सके। फिर आप बताएं, कब आएंगे वो दिन जब तुम पढ़ लिख कर अपने नाम से पहचानी जाओगी और ये माँ फखर से दुनिया को कहेगी, ये मेरी बेटी है। पर अभी तो बहुत वक्त है उम्मी, तब तक गर्मी कैसे सहूहेगी? मेरे साथ सह लो। हर रात तुम्हें पंखा जेलोहेगी और दिल से दुआ करूंगी। फिर वदा करें, जब हम अमीर हो जाएं, पहला एसी मेरे कमरे में लगेगा। वदा, और इस दिन में तुम्हारे साथ लेटकर पहला झोंका तुम्हारे चेहरे पर डालूंगी। आप कभी थकती नहीं हैं। माँ बनने के बाद थकन लफ्जों में नहीं रहती, वो दुआओं में बदल जाती है। क्या वाकई हम एक दिन हंसेंगे, ऐसे जैसे फिल्मों में लोग हंसते हैं? हंसी फिल्मों से नहीं, दिल के सच से आती है, और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। अब उम्मी, एक दिन हमें कोई देखकर हसद करेगा। नहीं बेटा, एक दिन लोग तुमसे दुआ लेंगे। ज़ैनब, बस फिर उम्मी, इस दिन तक मुझे रोज अपनी बाहों में सुला दे। रीन, रोज साला दूंगी और हर रात तुम्हें एक नया ख्वाब दूंगी। उम्मी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? गर्मी, पुराने कपड़े, बिजली की फिक्र। बेटा, जो नसीब में लिखा हो वही होता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बस आज सबा कह रही थी कि उनके घर में नया एसी लगा है और वो ठंडी नींद सोती है। हमें ठंडी नींद नसीब नहीं, पर दुआएं जरूर हैं। पर उम्मी, क्या हम वाकई कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर दिल से चाहे तो। चलिए उम्मी, कुछ करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा हम कोई काम शुरू करें घर बैठे, जैसे कुछ बनाना, कुछ बेचना। बेटा, ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे? आपको सिलाई आती है ना? आप बच्चों के कपड़े सी सकती हैं। और तुम? मैं कपड़ों पर कार्टून कढ़ाई कर सकती हूँ, स्कूल के बच्चों को पसंद आएगा। हाँ, वाकई तुम्हारे हाथ में हुनर है, और हम दोनों का छोटा सा ब्रांड होगा। माँ बेटी क्रिएशंस, ये नाम तो दिल को छू गया। मैं खुद दरवाजे पर पेंट करके लिख दूंगी। पर कपड़ा और धागा कहाँ से आएगा? मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, उनसे शुरू करते हैं। और मैं महल्ले से पुरानी मशीन मांग लेती हूँ, वहीं पड़ी है। पहला जोड़ा बनेगा तो मैं फीस बिग पर तस्वीरें डालूंगी, और अगर किसी को पसंद आ गया तो ऑर्डर भी मिल जाएगा। उम्मी, हम ये कर सकते हैं, यकीन है मुझे, और मुझे तुम पर। पहला पैसा आएगा तो नया पंखा लेंगे, और दूसरा पैसा तुम्हारे स्कूल बैग के लिए, और तीसरा आपके लिए नर्म चप्पल। चप्पल तो खैर पुरानी चलेगी, पर तुम्हारी हंसी नहीं रुकनी चाहिए। उम्मी, आपने हमेशा सबके लिए किया, अब मेरी बारी है। बेटी, तुमने मेरी उम्मीद जगा दी है, मैं कभी आपको मायूस नहीं होने दूंगी। चलो आज से नया सफर शुरू। क्या बनाएं पहले? फराक आ शर्ट आसान होगी, तुम कढ़ाई भी सीखोगी। फिर अगली बार मैं खुद सिलाई सीखूंगी। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो मुकम्मल हुनरमंद बुनती जा रही है। जब मेहनत ईमानदारी से हो तो रब भी मदद करता है ना उम्मी? करता है बेटा, जरूर करता है। बस फिर चलो उम्मी, आज से हम भी वो लोग बनेंगे जो अपने ख्वाब खुद बनाते हैं और खुद पूरे भी करते हैं। अम्मी, मैंने आखिरी टांका भी लगा दिया, बस तैयार है। माशाअल्लाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। कैसा लग रहा है खुद को? दिल तो डर रहा है, क्या वाकई किसी को पसंद आएगा? जब दिल से कुछ बनाओ तो लोग खुद दिल से पसंद करते हैं। अगर किसी ने खरीद लिया तो हम सच में काम शुरू कर सकते हैं। हाँ बेटा, बस एक बार कोई ऑर्डर आ जाए। मैं फेसबुक पे तस्वीर डाल देती हूँ। डाल दो, लेकिन दुआ भी करो कि किसी का दिल भी माइल हो। अम्मी, कोई दरवाजे पर है। हाँ, मैं देखती हूँ। अरे शफकत आंटी, आए आए। नसरीन, मोहल्ले में चर्चा हो रहा है तुम्हारी बेटी के हुनर का। कुछ नहीं आंटी, बस दुआ है आप सबकी। अस्सलाम अलैकुम आंटी, आपको दिखाऊं कपड़ा? हाँ हाँ बेटी, वही देखने आई हूँ। ये देखें, बच्चों के लिए बनाया है।
कढ़ाई खुद की है। अल्लाह, कितना नफीस काम है। तुमने ही क्या? जी आंटी, उम्मी की निगरानी में। ये जोड़ा तो मैं ले रही हूँ, ईद के लिए अपने भांजे को दूंगी। अल्लाह आपको खुश रखे आंटी। अम्मी, पहला जोड़ा बका। सब्र कर बेटी, शुक्र अदा करो। और सुनो, 2 और चाहिए मुझे, एक नीला एक पीला। अभी तो हमारे पास इतना सामान नहीं। अम्मी, मैं बाजार से धागा और कपड़ा लाऊंगी। कोई जल्दी नहीं बेटी, बस ईद से पहले मिल जाए। इंशाल्लाह आंटी, हम वक्त पर बना देंगे। आंटी, आपको पैटर्न और साइज लिखवा दूं? हाँ, मेरे साथ चलकर बता दो। बेटा कागज कलम ले आओ। जी उम्मी, लाई। आंटी, बोलिए। नीला जोड़ा 5 साल के बच्चे का और पीला 7 साल के लिए। ठीक है आंटी, हम इंशाल्लाह खूबसूरती से तैयार करेंगे। अम्मी, पहला कमाया हुआ पैसा। ये सिर्फ पैसा नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत का फूल है। अम्मी, अब हम भी किसी से कम नहीं। और ये शुरुआत है, बहुत दूर जाना है हमें। तुम दोनों को अल्लाह तरक्की दे, मैं दूसरों को भी बताऊंगी। बेटा अब तुम्हें पूरा आसमान छूना है। और आपका हाथ हमेशा मेरे साथ हो उम्मी। ज़ैनब देखो कैसा ठंडा कमरा है, अल्लाह ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। अम्मी, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि हमारे घर में अपना एसी है। कल तक हम पंखे की हुआ को तरस रहे थे। बस बेटी, अल्लाह का शुक्र है, इसने हमारी मेहनत को रंग लाया। उम्मी, आपकी दुआओं का असर है। जब आप रात रात जाग के मेरे लिए दुआ करती थी, तब मैं कुछ नहीं समझती। तभी तो कहती हूँ माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। अब हम भी अपने लिए चाय फ्रिज से निकाल के ठंडी पी सकते हैं। वाह जिंदगी। हाँ, और वो पुराना पंखा याद है जिसकी आवाज पूरी रात तंग करती थी। अम्मी, अब भी वो पंखा याद आता है जो कभी चलता था कभी नहीं। ये सब मेहनत का सिला है बेटी। ताव ने पढ़ाई में दिल लगाया, मैंने सिलाई की, अल्लाह ने बरकत दी। अम्मी, अपने जो कुर्बानियां दी हैं उनका बदला शायद मैं कभी ना दे सकूं। नहीं बेटा, माँ को बदला नहीं चाहिए, सिर्फ औलाद की खुशी चाहिए। अब मेरी दुआ है हम दूसरों की भी मदद करें जैसे कभी हमारे साथ लोगों ने की। बहुत खूबसूरत सोच है ज़ैनब, यही तो असल अमीरी है। अम्मी, अब हम जो भी खाएं पिएं पहने सब अल्लाह के शुक्र के साथ करेंगे। बिल्कुल बेटा, हर नवाला शुक्र से खाओ तो नेमतों में इजाफा होता है। अम्मी, ये नया सोफा भी कितना आरामदेह है, मैंने कभी सोचा भी ना था। याद है पुराना सोफा जिस पर झाड़ू देने से पहले बैठना मुमकिन नहीं होता था। अम्मी, अब आपको गर्मी में चूल्हे के सामने पसीने में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। हमने नई चूल्हे वाली आड़ लगवा ली है। अल्लाह तेरा भला करे बेटी, ताऊ ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम हर माँ एक गरीब खानदान की मदद करें जैसे कभी हमें मदद मिली थी। यही तरबियत थी जो मैं तुझे देना चाहती थी। अब मुझे लगता है मेरी तरबियत कामयाब हुई। अम्मी, अब हम कभी अंधेरे में मोमबत्ती जला के नहीं बैठेंगे। हाँ बेटी, अब तो जनरेटर भी है और यूपीएस भी। जमाना बदल गया। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम एक कुरान खानी रखें, सब महल्ले वालों को बुलाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत अच्छा ख्याल है, खुशी बांटने से बढ़ती है। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम नया फ्रिज भी ले लें, ये वाला थोड़ा पुराना हो गया है। ले लेंगे बेटी, अब फिक्र की बात नहीं, अल्लाह ने रिस्क में कुशादगी दी है। अम्मी, ये कपड़े देखें, नए कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है। हाँ, और अब वो दिन गए जब ईद पर भी पुराने कपड़े धो के पहनने पड़ते थे। अम्मी, जब हम मुश्किल में थे तो आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, आज हमें ये दिन इसी हिम्मत का सिला है। बेटी, जब तक माँ जिंदा हो औलाद को थकने नहीं देती। अम्मी, अब मैं आपको उम्रा करवाना चाहती हूँ, अपने जिंदगी भर हमारे लिए सब कुछ किया। इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे, मैंने कभी मांगा भी नहीं, अल्लाह ने सब दे दिया। अम्मी, अब मेरी दुनिया है, आप खुश रहेंगी तो मैं कामयाब रहूंगी। बेटी ताव खुश रहे, बस यही मेरी दुआओं का हासिल है। अम्मी,
آج میرا دل چاہتا ہے کہ چھت پر جا کے آسمان کو دیکھوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ چلو بیٹی ساتھ چلتے ہیں، وہی آسمان ہے مگر اب تلے سکون ہے۔ امی، آج ہم بھی ایک کہانی بن گئے ہیں، وہ کہانی جس کا انجام خوشیوں سے بھرا ہے۔ اور اس کہانی میں ہر لفظ اللہ کے شکر سے لکھا گیا ہے۔ امی، اب میں ہر دن دعا کروں گی کہ یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔